Good morning, everyone. I am Surekha Thakur, ASPD. Welcome to all of you on the behalf of Department of School Education. Today we have all joined virtually on the inaugural session of Sustainability Leadership Program 2024 for secondary school students. The theme of this program is Solid Waste Management System. As we all know, this is burning issue in these days. I just want to brief about this program, how this program will be conducted at school level. It's 8-week internship program for the students entailing 8 activities, almost engaging students for 2 hours each week. Means 8 weeks, 8 activities, 2 hours each week. This program will be conducted in such a way. Here, I would like to share with you that during the last year, 2023-24, this program was conducted in district Mohali. More than 1,200 students participated in this program. This program was organized under the dynamic leadership of Deputy Commissioner Mohali, Ma'am Ashika Jain, our dynamic Madam Ginni Tuggal, District Education Officer Secondary, and District Nodal Officer Preeti Bansal. And this program was conducted very successfully. All students actively participated in this program. On the success of this program, now we have extended this program in all 23 districts. And I would like to share with you that 461 schools are participating in this program. More than 28,000 students will participate in this event. And this program will be conducted under the able guidance of Dr. Puran Singh, who is Director of Solid Waste Management, Department of Local Government. Apart from this, 500 nodal teachers. We have designated nodal teachers at school level, at district level, and even at state level. Mr. Yunus Khoker, who is doing wonders with me in this project. And beyond this, 100 community facilitators from 166 urban local bodies. We all are participating in this event, and I fully hope this event will be declared as a mass campaign, mass event, and we will try to resolve this burning issue with the help of you people, with the help of students who will further sensitize to the community, to the parents, as well as teachers will also help a lot in this matter. Further, I want to share, it's my pleasure to introduce Suhani Sharma, who is the visionary behind of this program. You know, Suhani is a student of class 12, and she is the head girl of Delhi Public School, Chandigarh. She is the driving force behind the conceptualization, design, and development of both the program content and its website. It's really matter of pride for all of us that she is leading this project in collaboration with the Department of School Education and Department of Local Government. Here is just brief about Suhani. Academically, Suhani is an exceptional student, having scored 99% marks in her 10th board exams. She also earned the first rank in the Vidyarthi Vigyan Manthan, India's largest science talent search competition. Beyond her academics, Suhani is the true all-rounder. She holds a national record in Rubik's Cube, is an accomplished squash player representing Chandigarh twice in the national games. She is musically gifted, playing both piano and tabla, where she has achieved the Visharad level. Not only this, her passion for learning extends beyond school, with articles published in the prestigious outlets such as Science Reporter,
down to earth, and the times of India. I request all the participants to explore more of her work through the resource section on the website and her YouTube channel, Suhani Sharma 208. I repeat, Suhani Sharma 208. I wish all students who are participating in this event will really get inspiration and motivation from Suhani Sharma. She is like you. She's just 17 years old and doing wonders. And they will play, all of you will play a vital role to sensitize and aware the community, parents, and all other stakeholders about solid waste management. And the team, now we are having near about 29,000 stakeholders. It will go beyond 29 lakh stakeholders. Then we will achieve our target. Without further ado, I welcome Suhani to take the lead for today's session. Thank you very much. Sarika, I want to know, क्या सबको मेरी स्लाइड्स दिख रही है? मैंने शेयर तो किया है, पर आई एम नॉट श्योर अगर मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं. Not sure. We will check and we will let you know. But I think right now we are not able to see. दोबारा प्लीज रीशेयर. हाँ, मैं एक बार रीशेयर करती हूँ. जी जी जी. अब दिखिए. नहीं. आगे. Yes, yes, now. Okay, perfect. आगे. Thank you. Thank you. एक मिनट, just give me one. Okay. So again, thank you so much, Ms. Sarika. आपने काफी ज़्यादा अच्छी introduction दी. I'm really happy that आप सारे यहाँ पर joined हो, because आज हम बात करने वाले हैं Sustainability Leaders Program के बारे में. तो we'll be talking about कि वो कैसे structured है. We'll be talking about हमारी क्या program website है जहाँ पर अभी तक सारे बच्चों की registration हुई है. And then we'll also be talking about कि waste management क्या होता है, the various aspects of waste management, and the importance of waste segregation at the source. And finally हम बात करेंगे कि आप सबकी क्या duties हैं as the new sustainability leaders of Punjab. So what is the Sustainability Leaders Program? It's a cross-sectoral initiative because it combines sustainability and education together. So this is an 8-week structured internship program, and it's designed for the students of classes 8 to 12. And इसके through, the students will be able to learn about solid waste management and sustainable practices by gaining knowledge, not only through webinars, but actually उन्हें hands-on experience भी मिलने वाला है through जहाँ पर field visits possible or field visits, वरना demonstrations and videos के through they'll learn कि actually ground reality क्या होती है. So इसके through they'll be able to develop skills in problem solving, critical thinking, creativity. वो रियलाइज करेंगे कि जो डिजिटल टूल्स जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डिजिटल एरा में, उनको कैसे यूज कर सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना सीखेंगे, एंड मोस्ट ऑफ ऑल कोलैबोरेशन, बिकॉज थोड़े जो ये प्रोजेक्ट्स होंगे देयर गोना बी वेरी बिग, तो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे. तो we're hoping that through this program you'll be empowered to become advocates for sustainable waste management, and you'll be able to promote जो एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट है हर जगह, सो दैट यू स्प्रेड अवेयरनेस नॉट जस्ट अपने स्कूल में पर अपनी कम्युनिटी में एंड अपने डिस्ट्रिक्ट में. So I've been involved with solid waste management for some time up. So when I was younger, मैं भी field visits पर जाया करती थी, and during my field visits I realized अगर हमें sustain करना है waste management का practice, तो हमें जो next generation है हमारे students, उन्हें educate करना काफी ज़्यादा ज़रूरी है. So that is something that led to the creation of Sustainability Leaders Program, so that हम सबके अंदर awareness create कर पाए कि waste management क्यों important होती है. तो I hope by the end of this presentation आप सबको पता हो कि आपको क्यों proper waste management follow करनी चाहिए. तो सबसे पहले sustainability क्या होती है? I think आपने schools में भी पढ़ा होगा अपनी textbooks में sustainability क्या होती है.
तो सस्टेनेबिलिटी बेसिकली मीन्स कि अपनी रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि आपकी जो प्रेजेंट नीड्स है वो तो फुलफिल हो जाए, पर जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स है उनको आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। जैसे जो फ्यूचर जनरेशन है वो आपके कारण ना सफर करे, तो इट्स क्रिएटिंग अ बेटर टुमारो। तो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है? इट्स इज द प्रॉपर कलेक्शन, processing and disposal of waste in a way that minimizes the impact on the environment and human health. तो ऐसे करो प्रोसेस वेस्ट कि हमारे एनवायरनमेंट में भी कम से कम नुकसान हो एंड ह्यूमन हेल्थ भी ना अफेक्ट हो। तो द सिंपलेस्ट वे of sustainable waste management is following the 5R approach. So that includes reducing, reusing, recycling, repairing, and recovering of waste. तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सब 8 वीक्स का प्रोग्राम है, राइट? तो बिगिनर स्टेज विल बी द फर्स्ट 4 वीक्स एंड एज मिस सुरेखा सर आपको अराउंड 2 आवर्स पर वीक टाइम स्पेंड करना होगा। तो फर्स्ट वीक आज का वेबिनार फर्स्ट वीक की स्टार्टिंग को मार्क करता है, तो कंग्रेचुलेशन, आप सारे प्रोग्राम में अभी तक काफी अच्छा कर रहे हो। तो फर्स्ट वीक में हम अभी सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे एंड लेटर सेक्शन ऑफ द स्लाइड्स में मैं बात करूंगी कि वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। एंड देन सेकेंड वीक्स में जहाँ पे पॉसिबल हो हम बच्चों को फील्ड विजिट्स पे लेकर जाएंगे एंड वरना हम डेमोज के थ्रू वेस्ट सेग्रीगेशन एफर्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो you'll be able to learn कि waste processing at RMC यानी Recovery Material Center कैसी होती है। You'll be interacting with waste collectors and community facilitators. तो week 3 में you'll be identifying कि stakeholders कौन होते हैं। Stakeholders यानी जो भी people involved होते हैं in the process of waste management, from waste generation to waste processing. तो यूल आइडेंटिफाई कि कौन लोग होते हैं एंड देन आप देखोगे हर एक लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हो सकता है जो वेस्ट कलेक्टर हो उसे प्रॉब्लम आ रही है कि लोग अपना वेस्ट सेग्रीगेट करके नहीं दे रहे, राइट? तो आप उसके हिसाब से एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे वीक 3 में। तो ये टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक भी हो सकते हैं। आप सोच भी सकते हो कि मैं प्रपोजल पिच करूं, तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा किसको प्रपोजल दोगे, आपको क्या मांगना पड़ेगा। एंड आप एक बिजनेस मॉडल भी बना सकते हो टू लुक एट द वेरियस वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो वीक 3 इज मोर ऑफ एन ओपन एंडेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमारे हर वीक में ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, मेरे साथ वेबिनार्स भी होंगे, तो हर वीक में विल गो इनटू मोर डेप्थ अबाउट एवरीथिंग। तो वीक 4 में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिलेट and to be able to connect with people and share कि आपने क्या सीखा है and the importance of the things that you believe in. तो इसके हम अपनी creativity skills use करेंगे to do this. So you'll be making posters or be narrating stories to convince people कि waste management क्यों important है. So advanced stage is going to be another 4 weeks. तो week 5 to 8 will be the advanced stage. इसमें हो सकता है आपकी टीचर्स आपको एक दूसरे के साथ पेयर अप कर ले फॉर पेयर लर्निंग। एंड week 5 में हम थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम क्या होता है, यानी क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, उनको और डेप्थ में हम समझेंगे। एंड हम बायो रेमिडिएशन के बारे में भी समझेंगे, विच इज अनदर प्रोसेस जो हमारे लैंडफिल्स में इतना ज्यादा वेस्ट होता है उसको अच्छे से प्रोसेस करने का। एंड देन वीक 6 में वीक 6 इज गोइंग टू बी वेरी फन बिकॉज आप खुद ट्राई करोगे जो सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो अपनी कम्युनिटी या फिर स्कूल लेवल या फिर नेबरहुड लेवल में आप ट्राई करोगे सॉल्व करने की। जैसे जो भी आपने वीक 3 में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी उनको ही आप एक्चुअली ट्राई करोगे सॉल्व करने की। विद मे बी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ पेयर अप कर लो, तो आप इसमें लोगों को अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। आप सेपरेट डस्टबिन अडॉप्ट कर सकते हो अपनी लेन में, आप कंपोस्टिंग पिट्स बना सकते हो अपनी कम्युनिटी या फिर स्कूल में, या फिर आप ट्रीज प्लांट कर सकते हो। तो इसमें आप रियल एक्शन लोगे। आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग वीक बिकॉज यू विल इमर्ज एज सस्टेनेबिलिटी लीडर्स विद दिस। वीक 7 में जैसे मैंने पहले मेंशन किया था आप डिजिटल स्किल सीखोगे। तो आप एक 5 to 7 स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाओगे ऑन एनी थीम यू फील लाइक आपने सीखी थी। तो आप बताओगे कि आपकी क्या लर्निंग्स थी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है एंड आपकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो थ्रू वीक 7 यू विल बी एबल टू डू दैट। वीक 8 में आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखोगे। यू विल बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर क्लास
फॉर अबाउट 2 to 3 minutes आप एक प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, आप पोस्टर यूज कर सकते हो. लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी परफॉर्म किए थे अपनी कम्युनिटीज में, या फिर आप स्टोरीज नरेट कर सकते हो. एंड फाइनली वीक 8 के एंड पर हम अवार्ड्स देंगे. तो द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल दे विल बी अवार्डेड. एंड हमारी जो स्कूल नोडल टीचर्स हैं जिन्होंने इतना ज्यादा हमें मदद कर रहे हैं, दे विल ऑब्वियसली बी फैसिलिटेटेड. एंड उसके बाद हमारे जो स्कूल्स हैं हम उन्हें भी असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस थी and the waste management practices and initiatives undertaken by the school. तो अगर किसी स्कूल में अगर आप देख लो कि डिफरेंट डस्टबिन भी अडॉप्ट कर लिए, कंपोस्टिंग पिट भी बना ली, ट्री प्लांटेशन भी हो रही है, तो उसकी ज्यादा चांसेस होंगे ऑफ विनिंग द सस्टेनेबिलिटी स्कूल ऑफ द ईयर. तो हम एक सस्टेनेबिलिटी स्कूल ऑफ द ईयर हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी हम बताएंगे एंड स्टेट में भी हम सस्टेनेबिलिटी लीडर स्कूल ऑफ द ईयर अनाउंस करेंगे. तो ये बस एक एग्जाम्पल है एक प्रपोजल का which was pitched to Elon Musk, the creator of Tesla and electric vehicles. तो इसमें the student was asking Elon Musk for e-carts, for compartmentalized e-carts for proper waste collection. तो ऐसी सी आप चीजें करोगे, right? तो ये प्रोग्राम मोहाली में लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था and it was very successful. And it attracted a lot of media attention as well. तो ये हमारी सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम वेबसाइट है. तो जैसे मिस्टर रेखा ने बोला था, इस पर आपकी रिसोर्सेज भी हैं. तो अगर आपको देखना है कि हमने लास्ट ईयर क्या वर्क किया था, पास्ट वर्क देख सकते हो. हमारी are going to be college going students and NSS volunteers. तो जैसे आप सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम खोलते हो तो ये आपको दिखेगा, आपके डिफरेंट हेडिंग्स है, होम, अबाउट द प्रोग्राम, सैंपल एक्सरसाइज, रिसोर्सेज, ये सारी. अगर आप किसी पर भी क्लिक करते हो तो आप उसके रिलेटेड चीजें देख सकते हो. एंड मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जैसे मैम ने बोला था, @Sohani Sharma 208. उस पर भी मैं जो भी हम चीजें कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम के साथ मैं अपलोड करती रहती हूँ. इवन इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएगी if anyone wants to see it again. तो अब हम बात करते हैं अबाउट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहले वेस्ट होता क्या है? इट्स एनीथिंग जो आप यूज नहीं कर रहे. इट्स अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल. तो हो सकता है आपने चिप्स खाए, जो पैकेट है वो वेस्ट है. आपने पानी पिया, जो आपने बॉटल पानी, प्लास्टिक की बॉटल अगर आप यूज करो जो आपको यूज नहीं करनी चाहिए, तो वो एक वेस्ट बन जाएगी. तो जैसे हमारे जो प्रेजेंट सिनेरियो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, हम देख सकते हैं जहाँ पर भी रोड साइड पर जो डस्टबिन होते हैं उसके अराउंड इतना सारा कचरा गिर जाता है डंप साइट्स पर. बहुत से लोग क्योंकि इन्हें पता नहीं वेस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं वेस्ट को, ऐसे ट्रीज पर लटका रहे हैं. एंड जो सोशल इवेंट्स है वहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है एंड उधर बहुत रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं. तो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल इन द वे हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वेस्ट मैनेजमेंट के कारण? तो एक तो ऑब्वियसली हमारे अराउंड काफी डर्टीनेस हो जाती है एंड जो इतनी अनक्लेनलीनेस के कारण हमारा एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूट हो जाती है. एंड ऑल्सो बिकॉज ये इतनी ज्यादा गंदगी है, उसके अराउंड काफी सारी फ्लाइज आ जाते हैं, काफी सारे मच्छर आ जाते हैं एंड ये बीमारियां पैदा करते हैं. उसके बाद जो बहुत से लोग क्योंकि बर्न करने लग जाते हैं वेस्ट, उसके कारण हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. तो ये आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकते हैं. तो इट्स वेरी बैड. तो बर्निंग ऑफ वेस्ट इज अ बिग नो. एंड बहुत से बार लोग डस्टबिन में नहीं डालते वेस्ट को एंड वो इधर उधर गिर देते हैं. तो इट चोक्स वाटर बॉडीज, ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम्स. ऑल्सो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, बहुत सी बार वो ये खा लेते हैं वेस्ट अननोइंगली एंड उसके कारण बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं एनिमल्स की. तो अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से नहीं कर रहे तो वो आपकी इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? सबसे पहला इज प्रिवेंशन, यानी वेस्ट प्रोड्यूस ही ना करो. सेकेंड, रिडक्शन, अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो कम से कम क्वांटिटी में करो. थर्ड, रीयूज, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो उनको रीयूज करते रहो. एंड देन फोर्थ, रिसाइकलिंग.
तो जो भी जैसे चीजें हैं उनको अलग रख लो कि आप अपने वेस्ट कलेक्टर्स को दे पाओ कि वो रिसाइकल कर ले। 5th इज रिपेयर एंड रिकवरी। 6th इज प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। तो रिपेयर एंड रिकवरी क्या होता है? रिपेयर एंड रिकवरी बेसिकली मीन्स कि जो भी आपके वेस्ट है हम उसके अंदर और वैल्यू एडिशन दें एंड उसको किसी और चीज की तरह यूज कर लें, राइट? तो जैसे ओल्ड पुराने कपड़े हैं, आप उनको क्लॉथ बैग्स में बना सकते हो, रैक्स में बना सकते हो। जो पुराने ड्रम्स हैं उनको आप कंपोस्ट में बना सकते हो, वुड क्रेट्स को शेल्फ में बना सकते हो, एंड मेटल कैन्स को आप मेरी पॉट्स की तरह यूज कर सकते हो। रिसाइकलिंग इज बेसिकली जब आप अपना वेस्ट, जो ड्राई वेस्ट होता है, उसको अलग रखते हो फ्रॉम योर वेट वेस्ट एंड अपने रिसाइकलर्स को दे देते हो, एंड देन वो आगे वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज पर जाता है, जो आगे और लोगों को देते हैं जो ये ड्राई वेस्ट को यूज कर पाते हैं इनटू मेकिंग अदर थिंग्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो रिसाइकल्ड स्टफ होता है जो बनता है उसमें उसको बनाने में लेस एनर्जी चाहिए होती है बिकॉज आपकी फ्यूअर रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। तो अल्यूमिनियम कैन्स, कार्डबोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास, पेपर, ये सारी चीजें आप रिसाइकल कर सकते हो। तो ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे रिसाइकल्ड वेस्ट के जो बच्चों ने लास्ट ईयर किए थे। तो हमारा सॉलिड वेस्ट किस टाइप्स का होता है? आपने मोस्टली ड्राई एंड वेट के बारे में सुना होगा, पर वो एक्चुअली उससे भी ज्यादा होता है। टाइप्स का आप कह सकते हो। तो सबसे पहले हमारा वेट वेस्ट हो गया जो किचन एंड हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है। उसके बाद हमारा ड्राई वेस्ट हो गया विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये हमारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, प्लास्टिक हो गया। तो ये सारा डिकम्पोज नहीं होता पर इट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज। एंड फिर हमारा सैनिटरी वेस्ट जैसे डाइपर्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स। एंड देन हमारा डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्मफुल होता है तो अगर आप इंजेस्ट कर लो। एंड देन हमारा ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो ये हमारी बैटरीज होगी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगी, पुराने लैपटॉप्स, फोन्स, वो सारी चीजें। तो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स क्या होती है? व्हाट्स द की टू अ सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट? सबसे पहले इट स्टार्ट्स घर से, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी घर से ही वेस्ट को वेट एंड ड्राई में आप सेपरेट आउट करो। उसके बाद जो ये वेस्ट होता है वो आपके घरों से कलेक्ट किया जाता है बाय वेस्ट कलेक्टर्स। तो वो उसको ऐसे कलेक्ट करते हैं इन द कंपार्टमेंटलाइज्ड कार्ड्स कि वो सेपरेट आउट रहे वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज तक। एक बार जब वो वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज पहुंच जाता है तो फिर वहां पर वेट एंड ड्राई वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। ऑल्सो हमारे 60% वेस्ट इज वेट वेस्ट, एंड अगर हम उसे ड्राई वेस्ट से सेपरेट रखें तो ड्राई वेस्ट अपनी वैल्यू रिटेन करता है। अगर वेट एंड ड्राई मिक्स हो जाता है तो उसके कारण जो ड्राई वेस्ट है उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है एंड वो रिसाइकिल नहीं हो पाता एंड आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते। तो जो ये हमारा वेट वेस्ट है, जैसे मैंने पहले बोला था किचन वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, वो कंपोस्टिंग में यूज हो जाता है। जो ड्राई वेस्ट है उसमें भी और टाइप्स ऑफ वेस्ट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे रिसाइक्लेबल्स हो गए, हमारे जैसे कार्डबोर्ड्स हो गए, पेपर्स हो गए, तो ये जंक डीलर्स के पास चले जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल वेस्ट। उसके बाद हमारे आगे नॉन रिसाइक्लेबल्स, तो उनका हम कुछ कर नहीं पाते, तो व्हाट वी ट्राई एंड डू इज कि उनको बिल्कुल छोटा बना लेते हैं एंड हम उन्हें या तो इन कॉम्पैक्ट शेप्स में रखते हैं या फिर हम इन्हें इंसिनरेटर्स में जलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे आगे इनर्ट्स, जो ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है, जैसे हमारे पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, एंड देन ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही रीयूज हो जाते हैं। तो वेस्ट जनरेटर्स कौन होता है? हम सब एक वेस्ट जनरेटर है। एवरीवन हु इज हियर, सारे लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, हर एक हाउस होल्ड वेस्ट जनरेट करता है। हमारे बल्क जनरेटर्स पर होटल्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, टेम्पल्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, ये सारे हमारे बल्क जनरेटर्स हो गए, पर वेस्ट तो हम सारे ही जनरेट करते हैं। तो एज अ वेस्ट जनरेटर हमारी क्या ड्यूटीज होंगी? सबसे पहले तो मिनिमाइज द वेस्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। उसके बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस भी हो रहा है उसे सेग्रीगेट करो, कीप इट सेपरेट इनटू 2 डस्टबिन, राइट? तो एक वेट एंड ड्राई वेस्ट अलग अलग डस्टबिन बनाओ, अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग टाइप ऑफ वेस्ट डालो। उसके बाद जो हमारा सैनिटरी वेस्ट होता है उसको अलग से अपने वेस्ट कलेक्टर्स को दो। लिटरिंग ऑन द स्ट्रीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी हमें, हम क्योंकि सस्टेनेबिलिटी लीडर्स बनने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं इधर उधर बिल्कुल भी कचरा नहीं गिरना चाहिए।
सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है उनको वेस्ट कलेक्टर्स को दो। उसके बाद जो भी वेस्ट है उसको बिल्कुल भी बर्न नहीं करना चाहिए या फिर उसको इधर उधर बैरी नहीं कर देना चाहिए। फिर पानी एंड सूअर्स में भी अपना वेस्ट मत डालो, बिकॉज वो जैसे मैंने पहले बोला था चोक कर देती हैं आपके सीवेज सिस्टम्स को। एंड देन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट करो इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। एंड आप ऑन साइट वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, यानी अपने घर, स्कूल एंड कम्युनिटी में खुद कंपोस्टिंग स्टार्ट करो, खुद कंपोस्टिंग पिट्स बनाओ। तो ये हमारे कम्युनिटी मोटिवेटर्स हैं जो घर घर जाकर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वेस्ट को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। एंड थ्रू दिस हमने देखा है कि काफी चेंजेस भी आते हैं लोगों की वर्किंग में। तो हाँ, जैसे मैं कह रही थी, वेट वेस्ट जो रिकवरी मटेरियल सेंटर होता है उसमें खाद बना लेते हैं बाय कंपोस्टिंग अपनी कंपोस्टिंग पिट्स में, जो हम ये घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑन साइट कंपोस्टिंग कर लो, जैसे क्रेट्स में लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप पिट्स भी बना सकते हो फॉर कंपोस्टिंग। तो ये हमारी थोड़ी कम्युनिटी कंपोस्टिंग यूनिट्स भी हैं। तो जब ड्राई वेस्ट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज पर रीच होता है, उसको फिर से फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, ड्राई वेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हो जाता है। एंड देन ये जो वेस्ट होता है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जब एक बार डिवाइड हो जाता है उसको डिफरेंटली प्रोसेस किया जाता है। जैसे जो थोड़े सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं उनको ऐसे से बेल्स में बना दिया जाता है जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। एंड जैसे आप देख सकते हो, जो ये डिटेल सेग्रीगेशन एट द रिकवरी मटेरियल सेंटर, जो ड्राई वेस्ट भी आता है उसको और चीजों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, एक जगह कार्डबोर्ड्स हैं, एक जगह प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, एक जगह सिंगल यूज प्लास्टिक्स है, एक जगह कुछ और है। तो उसके हिसाब से हम डिवाइड किया जाता है, बिकॉज हर एक वेस्ट डिफरेंट लोगों को चाहिए होता है। टू इंश्योर कि प्रॉपरली वेस्ट आपका मैनेज हो रहा है, इसलिए वो फर्दर सेग्रीगेशन करते हैं। क्योंकि जो हमारे जंक डीलर्स हैं, उन्हें जो रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल है उससे उनको कोई मदद नहीं होने वाली। वो रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल इंडस्ट्रीज को जाता है। टू इंश्योर कि हर एक वेस्ट जिन लोगों को चाहिए उनके पास चले जाता है रिकवरी मटेरियल सेंटर में और सेग्रीगेट किया जाता है वेस्ट को। जो हमारा कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट होता है वो एक अलग फैसिलिटी में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे वो और अपनी ब्रिक्स बनाने में मदद करते हैं, यूज करते हैं, एंड रोड्स बनाने में यूज करते हैं। तो हमारी क्या अप्रोच है, एक बार समराइज कर लेते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट की क्या अप्रोच है। सबसे पहले सेग्रीगेशन एट द सोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी जाकर आपका वेस्ट अच्छे से प्रोसेस होगा। उसके बाद वेस्ट कलेक्टर्स जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। फिर ये वेस्ट सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है रिकवरी मटेरियल सेंटर में, जहाँ पर फर्दर डिटेल सेग्रीगेशन होती है ड्राई वेस्ट की एंड वेट वेस्ट की। वो कंपोस्टिंग करते हैं। एंड ड्राई वेस्ट जब एक बार सेग्रीगेट किया जाता है उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज अगेन डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें यूज करते हैं ड्राई वेस्ट की। तो सॉलिड वेस्ट के क्या एडवांटेजेस होते हैं? आई थिंक ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ह्यूमन हेल्थ। तो क्लिनलीनेस में हेल्प करते हैं, आपकी सराउंडिंग क्लीन हो जाती है, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप रिसोर्स कंजर्वेशन कर पाते हो, आप वेस्ट से वेल्थ बना पाते हो। तो अब आप सारे सस्टेनेबिलिटी लीडर्स बनने वाले हो, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड सोर्स सेग्रीगेशन सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड आपको वेस्ट सेग्रीगेशन अगर आप अभी नहीं कर रहे, आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने घरों पर। रिफ्यूज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, आप हमेशा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की जगह इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स यूज करो, जैसे हमारे क्लॉथ बैग्स हो गए, जूट बैग्स हो गए। इधर उधर मत लिटर करो, पानी वाटर बॉडीज में मत गिरो, ठीक है, बर्न मत करो वेस्ट, घर पर कंपोस्टिंग स्टार्ट करो। आपकी पुरानी आइटम्स है उन्हें रीयूज कर लो या फिर डोनेट कर दो। वेस्ट कलेक्टर्स को रिस्पेक्ट करो, बिकॉज उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इन इंश्योरिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है। अवेयरनेस क्रिएट करो एज लीडर्स इन फैमिलीज, इन हाउस, इन अपने घर के अंदर, एंड अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, एंड अपने नेबर्स के साथ।
तो स्कूल एंड कम्युनिटी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्योंकि ओनली व्हेन पीपल विल रियलाइज कि वेस्ट मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है विल दे फॉलो इट। क्लेनलीनेस प्रमोट कर सकते हैं एंड हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स ना यूज करें। जो भी हम स्कूल के इवेंट्स भी होते हैं ट्राई करें कि जीरो वेस्ट इवेंट्स बनाएं। हम कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू कलेक्ट ओल्ड आइटम्स कि हम उन्हें कहीं डोनेट करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू एंड दिस प्रेजेंटेशन बाय सेइंग, आप क्या ऐसे 10 प्लास्टिक बैग्स यूज करोगे विद 10 डिफरेंट वेजिटेबल्स, या फिर एक क्लॉथ बैग फॉर 10 डिफरेंट वेजिटेबल्स? तो आपकी चॉइस है, आपके हाथों में है। तो डोंट वेट फॉर द चेंज, बी द चेंज। एंड अगेन हमारी प्रोग्राम वेबसाइट ये है जो आप सबके साथ पहले ही शेयर की गई है, तो आप वो प्रोग्राम वेबसाइट को देख सकते हो एंड मेरा यूट्यूब चैनल @सुहानी शर्मा 208 उसको आप देख सकते हो टू गेट मोर रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको जो है यहाँ से बड़ी नॉलेज मिली होगी। सुहानी हैज एक्सप्लेन्ड वीकली वाइज ये प्रोग्राम जो है कैसे चलेगा और हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। शी हैज क्लियर्ड एवरीथिंग। और जो इनकी प्रेजेंटेशन है सुहानी की तरफ से जो है वो हमारे ग्रुप में भी डल जाएगी। तो थैंक्स ए लॉट सुहानी फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। Now, may I request Dr. Ginni Duggal, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहाली, जिन्होंने लास्ट ईयर ये प्रोग्राम एज ए पायलट बेस पे स्टार्ट किया था और इसके बड़े वंडरफुल जो रिजल्ट है वो आए हैं। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, साथ ही उनके साथ नोडल ऑफिसर प्रीति बंसल जी भी बैठे हुए हैं, कि आपने इस प्रोग्राम को स्कूल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कैसे किया और आपको क्या क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम्स आई हैं या चैलेंज आए हैं उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, सो दैट अगर कोई इशू है तो अभी सारे स्टेक होल्डर यहाँ बैठे हैं तो उसको हम रिजॉल्व कर सके। तो ओवर टू मैम गिन्नी दुग्गल। Very good morning to all of good morning Suhani bet, Surekha ji, Yunus ji, and all the teachers who are here, who have joined this program, all the students who are here, who have joined the program. I especially thank Dr. Puran Singh ji, and I have with me Preeti Bansu ji. She was a nodal officer for this program in Mohali district. This program was started by Suhani last year, and 1200 students from my district, they participated in this program and they learned a lot about solid waste management. ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਟੂ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਯੂ, ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਯੂ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦ ਲੀਡਰਸ ਫॉर ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਪਲੈਨਟ ਲੀਡਰਸ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 1200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1 to 1 ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੁਹਾਨੀ ਵਾਸ ਅ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। And I think I would hand over, not saying much, my
Preeti Bansal, who was assisting me in this program and who was a nodal officer for this program. I would like to ask Preeti to share her views and what were the outcomes of this project so that you have a proper knowledge about how we proceeded with this project. So I hand over the mic to Preeti ji for further discussions. Thank you. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारे डीओ मैडम ने थोड़ा सा इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में समझाया कि ये प्रोग्राम हमने 2023 में किस तरीके से ये अपने मोहाली जिले में कैसे सक्सेसफुली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हमने मेरी ये प्रेजेंटेशन दिख रही है, सबको विजिबल है? इज माय प्रेजेंटेशन विजिबल टू यू? यस, विजिबल है प्रीति जी, विजिबल है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो ये हमारा जो पिछले साल का जो प्रोग्राम था, सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम 2023 में, दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी वर अ टीम of the education department and the municipal corporation also. They were a team and they collaborated and engaged all the students, including the principals, the nodal teacher of the schools. So they successfully participated and they learned quite a lot, many skills from this program. So सबसे पहले तो I thank our all this and Suhani and our background is by Dio madam. So this program, the aims and objectives of this program were shared with the the aims and objectives were there to develop the comprehensive knowledge, means बच्चों को पूरा पता हो। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमारे को अपने वेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, हमें खुद रोल मॉडल बनना होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए बड़ी यंग एज है जब बच्चे इन चीजों को सीखते हैं, और उन जो टीचर्स हैं वो रोल मॉडल अच्छे से खुद सीखेंगे, तभी वो बच्चों से वो चीजें करवा पाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास इतना वेस्ट जनरेट होता है जो सारा का सारा लैंडफिल में जाता है यूजुअली। तो इसके लिए बड़े अच्छे एफर्ट्स अगर स्कूल में बच्चा सीख लेगा तो घर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना वेस्ट खुद मैनेज करना सीख जाएगा। इतने लिफाफे लेके आना, उसकी बजाय वो अपने बैग्स इस्तेमाल करे। ये हैंड्स ऑन अप्रोच की तरफ भी ये जाता है। फील्ड विजिट्स हैं वो दिखाएंगे, हम बच्चों को लेके जाएंगे तो वो बच्चे वहां पर भी देखेंगे किस तरह से वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। तो वो जितने वेस्ट रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो सारे के सारे बच्चे इनमें प्रैक्टिकली एंगेज करता है अपने आप को। और बाकी स्टेक होल्डर्स जैसे जो स्वीपर्स हैं वो हैं इसमें, या जितने गवर्नमेंट है, जो पंचायत से अर्बन लोकल बॉडीज में, वैसे तो गवर्नमेंट जो है वो कितनी इन्वॉल्व है, तो कितने और कम्युनिटी के कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, लोग कितने इन्वॉल्व हैं। अपनी रिसर्च बच्चा खुद करता है, अपने आइडियाज खुद जनरेट करता है कि मैं अपना वेस्ट कैसे कम करूं। स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस वो सीखता है जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है भी, और क्या तरीके में नए सीखूं जिससे मेरा जो है वो मेरा बढ़ जाए, मेरा मतलब मुझे और क्या नए तरीकों से अपना वेस्ट जो है वो रिड्यूस करना है। पब्लिक स्पीकिंग में भी वो, क्योंकि वो जब लोगों से इन्वॉल्व होगा, कम्युनिटी से इन्वॉल्व होगा, तो उसकी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी होगी। इसके अलावा वो बहुत सारी डिजिटल स्किल्स और रिसर्च स्किल्स भी सीखेगा बच्चा। तो ये स्कूल्स के लिए तो बेनिफिशियल है। जिन चीजों में वो कमजोर रहता है तो हैंड्स ऑन अप्रोच चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को एंड में अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, स्कूल्स को अवार्ड मिलेंगे, कलेक्टिव पॉइंट्स इनके लेवल के ऊपर। हर 20 स्कूलों में से अच्छे स्कूल्स, वैसे तो नो डाउट सारे स्कूल्स ने हमारे मोहाली जिले में बढ़िया काम किया था, तो लेकिन फिर भी हमने कुछ स्कूल्स को जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया था उनको हमने चुना भी था इसके लिए। सो इसके बाद है हमारे क्रिएटिव स्किल्स। ये बच्चों ने खुद किया था काम, ये आप देख सकते हैं। ये इको थी उन्होंने उनके घर में, वैसे तो हमारे कुछ रूरल स्कूल्स में भी किया था जिनके घर में पशु होते हैं, तो उन बच्चों ने खुद अपनी जो इको लॉग्स हैं वो बनाई, जिससे कि जो लकड़ी है वो कम इस्तेमाल हो क्रिमेटोरियम्स में, जब जो डेड बॉडीज है उनको जलाने के लिए। तो ये बच्चों का ये क्रिएटिव स्किल्स आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों ने कितना अच्छा ये लिखा था, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इस तरीके से उन्होंने प्लेज भी ली, फिर क्या लर्निंग, उन्होंने एक प्रॉब्लम सिलेक्ट की, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा, ये सब काम उनके थे। उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब हुआ था तो हमने बच्चों को इस तरीके से, जैसे अब कर रहे हैं सेम इसी तरीके से वेबिनार्स कंडक्ट हुए थे, सेम इसी तरीके से। ये सारा मैं पहले बता चुकी हूँ, पीपीटीज की प्रेजेंटेशन भी उन्होंने बनाई थी।
तो इसके बाद है कि हमारी फील्ड विजिट्स इस तरह से हुई थी, आरएमसी में हुई थी, फेज 3A में, काउ पाउंड फेज 1 में, नेचर पार्क आर सेंटर में। तो इनके लर्निंग आउटकम्स बच्चों ने ये देखा था वहां पे कि कोकोनट, जो वेस्ट कोकोनट जैसे पी के वो फेंक देते हैं कोकोनट के जो, तो उससे कोकोपीट कैसे तैयार होती है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की उन्होंने बहुत सारी मल्टी लेयर प्लास्टिक बेल मेकिंग भी देखी थी किस तरह से होती है। सोर्स एग्रीगेशन डिमॉन्स्ट्रेशन भी उनको दी गई थी, कैसे दिए बनते हैं, जो छोटे छोटे पॉट्स हैं जो नर्सरी में मतलब काम आते हैं छोटे प्लांट्स को लगाने में, और फिर उनको शिफ्ट कर देते हैं। इकोलॉग्स के बारे में तो बता ही चुकी हूँ मैं। तो हॉर्टिकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके साथ थी। ये कुछ मीडिया कवरेज उस टाइम हुई थी, ये वो फील्ड विजिट्स की पिक्स आप देख सकते हैं। ये इस तरह से बच्चे वहां पे गए थे। सो ये सब फर्स्ट हैंड अप्रोच उनकी थी। और ये हमारा पूरे का पूरा टीम एंड सपोर्ट सिस्टम था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मतलब डिप्टी कमिश्नर, वो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, देन एसडीएम, एमसी कमिश्नर, ऑल दीज स्टेक होल्डर्स, ऑल दीज आर स्टेक होल्डर्स। सो ये सब इन्वॉल्व थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डेप्यूटी डीओ, डायरेक्टर एसडब्ल्यूएम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पंजाब लोकल बॉडीज, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भी चाहिए थे, फील्ड विजिट ऑर्गेनाइजर्स। उसके अलावा जो हमारे सबसे लोएस्ट लेवल पे नीचे इवन एनजीओज और मेंटर्स को भी इनमें बच्चों को एजुकेट करने इन्वॉल्व किया था। जब उनका उस टाइम पे उनको इवेल्युएट किया जा रहा था, तो दीज पीपल वर आल्सो इन्वॉल्व, राइट। तो ये एंड में हमारे जो सस्टेनेबिलिटी लीडर्स का जो वैलिडिक्शन सेरेमनी हुई थी उसकी पिक्स हैं। हमारे डीसी मैडम खुद इन्वॉल्व थे, डीओ मैडम इन्वॉल्व थे, सभी जने। और ये स्कूल्स की जो टीम पूरी की पूरी इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती रही। तो अभी ये तो सुहानी बता ही चुकी है कि सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है। तो ये हमारे देखिए बहुत सारी चीजें हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ रिलेटेड, क्योंकि जितनी रिसोर्सेज हम ले रहे हैं कुदरत से, नेचर से, क्या हम उसको वापस कर रहे हैं। मैं वैसे अपने स्कूल्स में देखती हूँ फुटप्रिंट जो है वो कम करना बड़ा जरूरी है, कार्बन फुटप्रिंट। हर एक इंडिविजुअल का, एनिमल कोई भी फुटप्रिंट में इन्वॉल्व नहीं है, वी ह्यूमन बीइंग्स आर, क्योंकि हमारी बहुत सारी नीड्स हैं और उन नीड्स को हम अपनी जितनी मिनिमम कर दें तो वो बहुत बेहतर होगा। अपना जितना वेस्ट अपने अपने लेवल पे कम कर दें वो बहुत बेहतर, अपने रिसोर्स लेवल पे, सोर्स लेवल पे, मतलब हम मिनिमल के ऊपर जाएं। बहुत सारे कपड़े खरीदना, फिर उन कपड़ों को फेंक देना, तो वो डोनेशंस पे जा सकते हैं हम उन चीजों को। किताबें हैं वो, क्योंकि पेपर की कंजम्पशन के लिए भी बहुत सारे ट्रीज काटे जाते हैं। तो ये सब चीजें जो हम अपनी लोकल लाइफस्टाइल में अगर करेंगे, अपने घर के लाइफस्टाइल में करेंगे, तो नो डाउट ये इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें भी इसमें कम होंगी, पॉवर्टी इरेडिकेट होगी, क्लाइमेट चेंज आजकल का बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सब उसी में इम्पैक्ट करेगा। तो हमारे को सिर्फ यही आना है कि अगर हमने बाकी जो जितने जंतु हैं लिविंग बीइंग्स अर्थ के ऊपर, उनका जीरो फुटप्रिंट है क्योंकि वो कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारा फुटप्रिंट तो बहुत ज्यादा है इंसानों का। उस पे हमने आना है कि हम चलो जीरो नहीं कर सकते हैं तो हम कम तो करें कम से कम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। तो इस तरह से हमारी ये पूरी की पूरी सस्टेनेबल जो जर्नी थी वो कंप्लीट हुई। तो मेरी तो यही सभी से उम्मीद है जितने हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम अब बड़े स्केल पे सुरेखा मैडम की तरफ से, उनकी हमारी पूरी टीम जो अपनी डिस्ट्रिक्ट एसएएस नगर से इन्वॉल्व है, उन्होंने पूरे पंजाब स्टेट को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो इसके लिए उन्होंने हमारे को यही एक मेन एफर्ट करना है कि हम अपनी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करें। सबसे पहले जो सेग्रीगेशन है उसके कॉन्सेप्ट पे जाएं, वेट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग करना सीखें। इसके अलावा जो हमारी ग्रीनरी है, प्लांट्स लगाने का, वो तो करते ही है, लेकिन उन प्लांट्स को हमने बचा के भी रखना है क्योंकि प्लांट्स ही सबसे ज्यादा कार्बन को सोखने का काम करते हैं। ठीक है, और हम इसके, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि भी बाकी सब जने भी, जैसे हमने मोहाली जिले में अच्छे से इस प्रोजेक्ट को हमने करा और बच्चों को सिखाया भी, बच्चों ने खुद किया भी, तो उन्होंने सोर्स एग्रीगेशन करनी सीख ली। उसके साथ साथ उन्होंने अपने स्कूल्स के अवार्ड भी जीते बच्चों ने खुद काम करके। ठीक है, सो this is all regarding the PowerPoint presentation. So thank you very much. So hope for the best. So I would just like to add one thing, as Sohani concluded, that don't wait for the change, be the change. So through this program, we would like you all of us to join hands together and let's make this change, let's create this change in the environment so that we have this sustainable environment for the future generations. Thank you, Surekha ma'am. Thank you, Yunusji. Thank you, Sohani ji. And thank you, Dr. Puranji, for giving us an opportunity to share what we have done last year in this Sustainable Leaders program. Thank you very much. थैंक यू गिन्नी मैम एंड मैडम प्रीति जी, आपने अपने बड़े अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं एंड आई होप कि जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं
ये सारे के सारे बड़े मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को, इस कैंपेन को जो है अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स की गाइडेंस के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। जैसे मोहाली ने वंडरफुल वर्क किया है, सारे के सारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और आई होप ये होगा भी विद योर फुल सपोर्ट। यहाँ पे भी कोई दिक्कत आएगी, हमारे मैम प्रीति बंसल है, मैम डीओ गिनी दुगल मैम है, सुहानी इज देयर, they are always ready to help you. And now I request Dr. Puran Singh, Director Solid Waste Management, जो इस प्रोग्राम के मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिनके सहयोग के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम ये जो प्रोग्राम है ये स्कूल्स में करवाएंगे उनकी टीम के साथ। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे अभी प्रीति जी ने बताया था कि वहां पे अवार्ड भी देंगे, हम बेस्ट स्टूडेंट्स भी निकालेंगे, कैसे उसको करेंगे। तो ओवर टू डॉक्टर पूरन सिंह जी, थैंक यू। धन्यवाद मैडम, सभी को नमस्कार। और विशेष करके जो स्कूल से स्टूडेंट जुड़े हैं अपने टीचर्स के माध्यम से, उनको भी मेरा नमस्कार। जैसा कि शुरुआत में आपने बताया था और फिर सुहानी ने विस्तार से एक्सप्लेन किया और फिर डॉक्टर गिनी दुगल और मैडम प्रीति बंसल ने आपको सारी आउटलाइंस और प्रोग्राम के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा समय लूंगा और आपको थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से बताऊं। आप सबको बताएं कि कचरा एक बहुत भारी समस्या है। आप किसी गांव में चले जाए, तो किसी पिंड से चले जाओ, तो किसी गली से, शहर से, कितने भी चले जाओ, स्कूल से भी कचरा इतना ज्यादा हो गया है कि क्योंकि एक तो जनसंख्या बढ़ गई है, दूसरा हमारा कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है। हर चीज पैकेज्ड है, हर चीज पैकेज में आती है। अब तो खाना भी पैक होकर आने लग गया है, तो कचरा दिन दिन बढ़ता जा रहा है। अब उसकी समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि गांव में आप किसी गांव के बराबर से सड़क पे से गुजर जाए, चाहे मेन सड़क हो चाहे छोटी सड़क हो, गांव की एंट्री पे और गांव के एग्जिट पे दोनों साइड में कूड़े के बड़े बड़े ढेर होते, दूर दूर तक लगे। गांव के छप्पड़, पोड़, तालाब, जितने भी और जोड़, सभी कचरे से मतलब हम भरने लगे। शहरों का भी यही हाल है। अब इश्यू ये है कि प्रोग्राम क्यों सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम इसलिए है कि बच्चों को एक इस प्रकार की भावना भरी जाए उनके अंदर, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए कि कचरा क्या है, व्हाट इज वेस्ट एंड व्हाई वी शुड मैनेज इट। तो कचरा वो चीज होती है जिसको हमारे लिए बेकार है। जैसे मैंने कमीज है, इसको पहनने से छोड़ दिया तो ये कचरा हो गया। मेरे पास पेन है, जिस दिन ये खत्म हो जाए स्याही, ये कचरा हो जाएगा। लाइक दैट एवरीथिंग बिकम कचरा। हम स्कूल में कागज है और लिफाफे ले जाते हैं और रोटी भी लपेट के ले जाते हैं, तो ये सब कचरा है। और कचरा मेनली वैसे तो कई प्रकार का होता है कचरा। यदि अगर हम बड़े म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, फिर उसके बाद हजार्डस वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है और कई प्रकार के हैं। परंतु मेनली हम जो इस पर विचार करेंगे और इसमें सीखेंगे वो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मेनली दो प्रकार का होता है, एक सूखा कूड़ा और एक गीला कूड़ा। सूखे कूड़े में जैसे कि आपको बताया था आता है जो गल सकता है ना, सॉरी, गीले कूड़े में वो कूड़ा है जो गल सकता है, आसानी से अपने आप भी गल सकता है, या जिसको पशु खा सकते हैं। आजकल तो बायोगैस भी बनती है कचरे से और बिजली भी बनाने लगे हैं। दूसरा कचरा है सूखा कचरा। सूखा कचरा बहुत सा कचरा ऐसा होता है जो रिसाइकल हो सकता है, यानी कुल कचरे का लगभग 60% कचरा गीला कूड़ा होता है और 40% सूखा कूड़ा होता है। सूखे कूड़े में प्लास्टिक भी है, लकड़ भी है, पत्ते लकड़ भी है और बहुत सी चीजें हैं। तो इसको हमें समझना है कि कचरा क्या है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप ये समझेंगे कि कचरा क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्यों जरूरत है इसकी। अभी बताया था कि अब कचरा बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं है, तो हम इसको जलाते हैं या इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। और कचरे की शहरों में एक सबसे बड़ी समस्या ये है और गांव में भी है कि कचरा शहरों में सीवर में चला जाता है, सीवर रुक जाते हैं, हमारी आधी फोर्स सीवर को साफ करने में लगी रहती है। गांव में नालियों में जाता है, नालियां रुक जाती हैं, पानी रुक जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, फिर बीमारी फैलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम ये समझेंगे कचरा क्या है। और ये जो प्रोग्राम है अपना 8 सप्ताह का, इसमें 2 घंटे हर सप्ताह आपको बच्चों को लगाने हैं। मैं और ज्यादा थ्योरेटिकल बात करूं उससे पहले, उसकी बजाय मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं
वो अपने आले दुआले अपने पड़ोस में कहीं या अपने आस साथ एक तो इसके बारे में जानकारी ले, उसके बारे में मैं बताऊंगा, वो इसका प्रैक्टिकल करें। अब यदि अगर हम गांव की बात लेते हैं तो जो गीला कूड़ा होता है आमतौर पर हम कैटल को डालते हैं और कैटल उसका कंजम्पशन कर लेते हैं। पिंडा जो रूढ़िया भी होंगी ने, जब हम छोटे छोटे थे आपकी तरह स्टूडेंट थे तो गांव में जो रूढ़ियां होती थी उसमें सिर्फ गलने वाला कूड़ा होता था। आजकल गांव की रूढ़ियों में भरा पड़ा है सूखा कूड़ा और वो हमारे खेतों में चला जाता है और उसके बड़े डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आजकल बाढ़ भी जो आ रही है, फ्लड्स जो आते हैं गांव में या शहरों में, उसका एक कारण कचरा भी है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल फ्लो हैं, नाले हैं, खाड़े हैं, वो सब कचरे से भरे पड़े हैं। तो हमें कचरों को समझना है, कचरे की मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना है। इस दौरान मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये है कि अर्बन एरिया में जो अर्बन लोकल बॉडीज 166 उनमें जितने स्कूल्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनके लिए हमारे कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स यूएलबीज में काम करते हैं। हमने उनको मैप कर दिया है और आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा कम्युनिटी फैसिलिटेटर कहाँ पर कौन से स्कूल से अटैच है। तो वो आपसे संपर्क करेंगे, आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि उनके नंबर होंगे। टीचर लोग जो नोडल टीचर हैं वो उनसे संपर्क करेंगे। तो वो एक तो आपसे बच्चों से इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, आपको वहां डेमो भी देंगे, साथ में बच्चों को ले जाकर सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में फील्ड में भी, यानी किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी बाजार में ले जाकर वो डेमोस्ट्रेशन भी देंगे। बच्चों को बताएंगे कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा कैसे किया जाए। अब हम क्या होता है कि सारे जो भी हम कूड़ा पैदा करते हैं उसको इकट्ठा एक उसमें डाल लेते हैं, डस्टबिन में या बाल्टी में या किसी भी लोकल कंटेनर में डाल लेते हैं। हमें यदि अगर शुरू से ही घर से ही कचरे को अलग अलग करना शुरू करें तो कचरे की समस्या का समाधान खत्म हो जाता है, ना समाधान हो जाता है। अब आप देखें जब हम इकट्ठा कूड़ा ले जाते हैं तो आपने जो अमृतसर के रहने वाले लोग हैं वो बड़े त्रस्त हैं, क्योंकि वहां पर बगतावाला में बहुत बड़ा डंप साइट बना है। वहां पर न केवल लीच होकर पानी बर्बाद खराब हो रहा है नीचे का, परंतु इसके साथ ही आग भी लगती है और उससे एयर पोल्यूशन बहुत होता है। इसी तरह लुधियाना में देखिए, जालंधर में देखिए और छोटी छोटी अर्बन लोकल बॉडीज में कूड़े के जो इस प्रकार के ढेर हैं वो हमारी सेहत के, और वो तब है क्योंकि हम कूड़े को अलग अलग नहीं करते। यदि अगर हम कूड़े को अलग अलग करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, आपको स्वानी ने अभी अपनी स्लाइड में दिखाया था कि खाद बनती है कूड़े से और वो खाद बड़ी यूजफुल होती है। सूखे कूड़े को हम चैनलाइज करते हैं। एक तो जो वेस्ट कलेक्टर होता है, जो कूड़ा घर घर से कूड़ा उठाता है, वो उसमें से कुछ जो बिकने वाला पार्ट है वो ले जाता है। दूसरा होता है उसके हम गांठ बनाते हैं यानी बेलिंग करते हैं और उसको प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स को देते हैं। यानी हमने कूड़े को मेन स्ट्रीमिंग से बाहर निकाल लिया। जो कूड़ा फैलना था सड़क पे, जो कूड़ा के ढेर लगने थे बाहर, उसको हमने वहां से निकाल लिया और वो प्रोसेस हो गया। इसके साथ सूखे कूड़े से वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, बिजली भी बनती है और अभी इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल के तौर पर यूज होता है। यदि अगर हम कूड़े को सही प्रकार से सूखे कूड़े को, क्योंकि यदि अगर हम कूड़ा सूखा बिल्कुल अलग और गीला बिल्कुल अलग नहीं रखेंगे तो उसका वो इकट्ठा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और मिक्स कूड़े की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है। तो सूखा कूड़ा यदि अगर हम अलग रखें तो वो इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है। और हर इंडस्ट्री को जो इस प्रकार के बॉयलर है उनको लगभग 5% फ्यूल का प्रयोग करना होता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो हम उसका हमारा जो नेचुरल फ्यूल है वो नहीं जलेगा, दूसरा प्लास्टिक का प्रयोग हो जाएगा वहां पर। और जो गीला कूड़ा है शहरों में देखो, इसके भी 2-3 प्रयोग होते हैं। मैंने अभी कैंटोनमेंट बोर्ड अमृतसर में देखा, वो क्या करते हैं कि गीले कूड़े की खाद बनाने के साथ साथ जो बेस्ट ऑफ वेस्ट है उसको गौशाला में भेजते हैं। जो और पिग फार्म में जो कैंटीन का वेस्ट है, जो गीला कूड़ा, उसको पिग फार्म में देते हैं। तो आप इसके दौरान में कूड़ा मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे और जो साइट पर बहुत सी वीडियोज हैं उनको देखेंगे। तो मेरी सभी जो कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स हैं उनसे अनुरोध है कि एक तो इंटरेक्टिव सेशन आप हर स्कूल में करें, जितने 50 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनके नोडल टीचर की सहायता से। दूसरा, उनको फील्ड में ले जाएं, बच्चों को डेमोस्ट्रेशन दें, कूड़े के बारे में उनको विस्तार से समझाएं। तीसरा, उनको जो हमारी कंपोस्ट यूनिट्स हैं जहां पर खाद बनता है या हमारे MRF है, जैसे पिछले साल मोहाली में 3A सेक्टर फेज 3A कुछ वहां पर उन्होंने उनको दिखाया, तो आप भी उनको वहां पर ले जाकर दिखाएं कि किस प्रकार से
वैसे तो बहुत सी विजिट हुई है, मैंने कई स्कूलों का देखा और काफी जब स्कूल रजिस्टर हो रहे थे, जो छोटी अर्बन लोकल बॉडीज है उन्होंने तो लगभग सभी स्कूल कवर हैं और उनको कंपोस्ट यूनिट और प्रोसेसिंग और एमआरएफ दिखाए हुए हैं। तो अब इस प्रोग्राम के दौरान मेरी सभी से अनुरोध है कि आप ये यूनिट जो है कंपोस्ट यूनिट्स और एमआरएफ, इनको जरूर विजिट करें और वह लर्न करें। वहां पर जो काम करने वाले उनसे बातचीत भी करें, क्योंकि ये एक इनकम जनरेशन का जरिया भी है। देखो, खाद 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बिकती है, प्लास्टिक भी 2 रुपए से लेकर 30 रुपए 35 रुपए तक किलो बिकता है। यानी सब साधन है, और जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं उनकी इनकम का साधन भी है। यानी ये इसको हम वेस्ट ना कह करके यदि अगर रिसोर्स कहें तो ज्यादा उचित होगा और अच्छा होगा। पर वो रिसोर्स तब बनता है जब हम उसको सोर्स पे अलग अलग करें। सोर्स मतलब जहां कूड़ा पैदा होता है, हम घर से ही उसको अलग अलग करें। दुकानदार अपनी दुकान में रखे अलग अलग, और होटल वाले अपने होटल में अलग अलग रखें। इस पर स्कूल में भी गीला और सूखा कूड़ा, जिस प्रकार ये पत्ते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, स्कूलों में पेड़ है, या मिड डे मील से जो कुछ बचता है वो गीला कूड़ा है, और उसको हम स्कूल में ही एक छोटा सा कंपोस्ट पिट बना करके उसका खाद बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने ऐसे ही प्रोग्राम शुरू किया था कि अगर हम कोई स्कूल चूज कर लें और उस स्कूल में जो सूखा कूड़ा है उसको वहीं इकट्ठा करवाएं, बल्कि बच्चे घर से भी यदि अगर अपना सूखा कूड़ा वहां ले आए तो उसको एक कंटेनर में वहां रखें, और फिर अर्बन लोकल बॉडी के लोग उसको वहां से उठा ले जाएंगे, उनसे तालमेल रखा जाए और वो उसको प्रॉपरली मेल करके उसको बेच सकेंगे। और हमने तो ऐसे ऐसे स्कूल भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जहां पर बच्चों से प्लास्टिक मंगवाया जाता है स्कूल में और उनको अवार्ड किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। और इसके साथ ही शहरों में, कस्बों में जहाँ गौशाला है और जहां पर अच्छे से काऊ डंग का मैनेजमेंट हो रहा है, जैसे कहीं पे प्लैंक बन रहे हैं जो कि में, और भी जैसे बायोगैस बन रहा हो कहीं, किसी गौशाला में बायोगैस भी हो सकता है। तो आप वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जरूर दिखाएं और विजिट करवाएं, और ताकि उनका 2 प्रकार से ज्ञान वर्धन होगा। एक तो जो हमारे एनिमल्स हैं उनके प्रति उनके अंदर भाव पैदा होगा, दूसरे जो वहां पर गोबर का मैनेजमेंट है उससे बच्चे समझेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें एक कुछ चीजें और प्रयोग करें आप। बच्चों से मेरी और सभी से अनुरोध है जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक मीन्स यूज एंड थ्रो, एक बार जिस चीज को हमने यूज कर लिया, जनरली कटलरी होती है, कप है, ग्लास है, फोर्क है, चम्मच है, इनका प्रयोग अपने लाइफ से कम करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रयोग करें ही ना। और जब आप बाजार जाते हैं विशेषकर सब्जी लाने के लिए तो आप कपड़े के थैले लेकर जाएं। मुझे लगभग 12 साल से मैं सब्जी मंडी से कोई प्लास्टिक वेस्ट लेकर नहीं आता। मैं 10 या 12 जो भी आइटम खरीदता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ, उनको 1 या 2 थैले या 3 थैले तक ले जाता हूँ और मैं उसी में डाल के लाता हूँ, और घर आकर फिर हम उसको सॉर्ट करते हैं। इस प्रकार से मैं वीकली 10-12 थैले प्लास्टिक के बचाता हूँ। मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम रिडक्शन। कचरे का जो प्रबंधन है वो रिडक्शन से होता है। जो 3 Rs की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई रिड्यूस और रिफ्यूज। आप रेडी वाले को एक बार ये कहकर देखें, वो आपको फट लिफाफा देगा, एक तुरंत केले डाल देगा, सेब डाल देगा, सब्जी डाल देगा। आप उसको नहीं मुझे कचरा नहीं लेना, मुझे तो सब्जी लेनी है, आप अपना थैला आगे कर दें। क्योंकि जो सब्जी बेचने वाला उसको आदत पड़ी हुई है, एक हाथ में वो उसका वो रखेगा तराजू और दूसरे हाथ में प्लास्टिक का थैला, वो उसमें फटाफट डालेगा। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे लोग हमारी मंडी में ये कहते हैं बाबू जी प्लास्टिक नहीं लेते, इसलिए उन्होंने अपना वो तराजू और थैला उठाना बंद कर दिया। तो आप भी एक ऐसा, मैं कहता हूँ ना, बी द चेंज दैट यू वांट। आप यदि अगर अपने घर को भी 0 प्लास्टिक वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप प्लास्टिक लाएंगे ही नहीं तो आपके यहाँ प्लास्टिक पैदा ही नहीं होगा। तो ये करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आप सीखेंगे। इस प्रोग्राम के तहत कुछ और एक्टिविटीज भी होंगी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कचरे के बारे में। कईयों ने तो जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं उन्होंने बड़े अच्छे रिसर्च किए हैं, और आपको स्टोरी टेलिंग, कचरे के बारे में आपको स्टोरी बता दें। जैसे मैंने आपको छोटी स्टोरी बताई कि मैं बाजार से कभी भी प्लास्टिक नहीं लाता है। जैसे आपको पोस्टर मेकिंग, पोस्टर तो आप बनाते ही रहते हैं, बहुत बार बनाते हैं, तो ऐसे राइटिंग भी हो सकता है। और डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग, आपको हम बोलने में झिझकते हैं,
हम क्लास में एक बार बोल कर देखें, फिर आपकी झिझक खुलेगी, आपकी पर्सनल आपका व्यक्तित्व तो उभरेगा, आप और ज्यादा से ज्यादा बातें सीखेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम की मतलब सफलता के लिए कामना करते हुए, जो पीएमआईडीसी की तरफ से जो जितनी भी हेल्प हो सकेगी उसके लिए हम हेल्प भी करेंगे इस कार्यक्रम के लिए। और देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अंत में, सुहानी ने लास्ट ईयर जो प्रोग्राम किए थे, आई accompanied her to few schools. She has capacity to make things happen. आप भी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो कहता हूं कि आप भी इसी प्रकार से अपने फेलोज को, अपने घर में, अपने पड़ोसियों को, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक स्टोरी देखी थी, एक वीडियो देखी थी आज से 10-12 साल पहले। महाराष्ट्र में एक बच्चे ने स्कूल से आकर, गांव के बच्चे ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं खाना तब, ये आज से 20 साल पहले ओपन डेफिकेशन होता था गांव में, बहुत ज्यादा, शहरों में भी दूसरे प्रकार की लैट्रिन होती थी। पेरेंट्स को उसके दबाव में आकर के, यानी उससे इंप्रेस होकर के, दे हैड टू मेक ए टॉयलेट। ओपन डेफिकेशन वाज अ वेरी बैड प्रैक्टिस एंड पार्टिकुलरली फॉर वुमेन। और इसके साथ ही और भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके स्कूलों में जो, ये इस विषय से हटके है, आपके स्कूलों में जो टॉयलेट्स हैं उनको आप बिल्कुल साफ सुथरा रखवाया कीजिए। और स्कूल में बिल्कुल एक चकाचक होना चाहिए स्कूल में कूड़ा नहीं होना चाहिए। कूड़ा ये नहीं कि लिया सारा इकट्ठा डाल दिया, नहीं, अलग अलग, गीला सूखा अलग अलग। मैंने एक स्कूल के, मैंने कह दिया स्कूलों में तो ऐसे ही होता है, तो मेरे जानकार थे, आजकल वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आप ऐसे ही बोल देते हैं, आप हमारे स्कूल में आइए, 1200 बच्चे हैं और आप टॉयलेट देखिए, हर टीचर कंट्रीब्यूट करता है 100 रुपए महीने के फॉर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स। फॉर ए टीचर 100 रुपीज नॉट ए ग्रेट थिंग। मैं ये नहीं कहता कि इस प्रकार से हो। टीचर जब मतलब लीड करता है तो स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। सो बी द एग्जाम्पल। पिछले साल का कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त रहा था और मैं समझता हूँ कि इस बार ये कार्यक्रम और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस है। 28,000 स्टूडेंट्स अब तक रजिस्टर हुए, 461 स्कूल रजिस्टर हो चुके हैं। दैट इन इटसेल्फ इज ए बिग मूवमेंट फॉरवर्ड। तो मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो भी मदद होगी, वी आर रेडी टू ऑफर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरिका। मैं एक बीच में बात ऐड करना चाहूंगी। पूरन सर ने हमें बहुत, उनकी टीम ने बहुत सहयोग किया था इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में, तो वी आर वेरी थैंकफुल। तो ये उनका ये उद्यम था कि जो सोर्स सेग्रीगेशन है ना, वेट और ड्राई वेस्ट की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उससे वेस्ट कम भी होता है, तो ये हमारे बच्चों ने प्रैक्टिकली किया था। सुरेखा मैडम, मैं 1 मिनट ही लूंगी बीच में, सॉरी। नहीं, इट्स ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें उन्होंने बच्चों ने ये सीखा था कि अगर हम सोर्स पे अपना दोनों तरह का वेस्ट अलग अलग कर लेते हैं तो उससे एक तो रिसाइकिल करने में इश्यूज कम आएंगे, ठीक है, रिसाइकिल आसानी से हो जाएगा। दूसरा, वेस्ट मिनिमाइज भी होता है, इससे कम भी जनरेट होता है। तो अलग अलग होने से वो वेस्ट को हम मतलब उसका जो उसको वेस्ट को मिनिमाइज करना है, एक तो कंपोस्ट बना के, दूसरा अगर उसको किसी रिसाइकलिंग प्लांट में देना है वो भी आसानी से दिया जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम वेस्ट को इकट्ठा डाल देते हैं, जैसे अभी पूरन सर ने बताया था। तो हमको सबसे पहले इसी स्टेप पे आना है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करें। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों ने करवाई हुई थी स्कूलों में। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर पूरन सिंह जी और प्रीति बंसल मैम। बिल्कुल ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें वेट और ड्राई को कैसे सेग्रीगेट करेंगे और कैसे हम इस प्रोग्राम को आगे जो है आपकी गाइडेंस से चलाएंगे। तो वी होप कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुहानी जी की प्रेजेंटेशन से, डॉक्टर पूरन सिंह सर ने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, गिन्नी मैम ने, प्रीति बंसल ने, दे हैव लर्नड ए लॉट। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे काफी स्कूल्स में कंपोस्ट पिट्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं हमारे टीचर्स ने और दे आर डूइंग वंडर्स। बट अंडर योर एबल गाइडेंस हमारे जो स्कूल हैं ये डेफिनेटली विल डू वंडर्स। और इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है हम इस प्रोग्राम को जो है विराम देते हैं। तो नेक्स्ट जो वीक में हमारा जो बिफोर वी क्लोज इट, एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये कार्यक्रम यानी ये बात जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, 28,000 स्टूडेंट से 2,80,000 तक जानी चाहिए। इट शुड गो 10 टाइम्स और पेरेंट्स तक जानी चाहिए और मोहल्ले में बच्चों को। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में मैंने सुना है कि कुछ इस प्रकार का है कि बच्चे कम्युनिटी में जाएंगे, वो उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे, सो दैट दे बिकम ऑल्सो नोन टू दिस।
और लीडरशिप प्रोग्राम है ये, फ्यूचर के लिए भी आर प्रिपेयरिंग द यूथ लीडर्स, यंग लीडर्स, दे हैव टू बी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ कंट्री। अब वो सीखेंगे, वो संस्कार। हमारा अभी कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता ही सेवा, संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, यानी हमें संस्कार पैदा करने हैं स्वच्छता के। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस प्रोग्राम। बाकी स्वानी Yes, ने yes. वेल एक्सप्लेन। थैंक यू स्वानी फॉर दिस ग्रेट प्रेजेंटेशन, एंड आई होप that in future also, whenever we join at this platform, you will do, and our community facilitators will be connecting with you by from Monday itself. Right. अभी sir. स्वच्छता ही सेवा का कल तक कार्यक्रम है, not on Monday, from third onwards. Yes. कल तक हम वाइंड अप कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, Yes. थैंक यू अगेन। Thank you very much. Thanks a lot.